नमस्कार भाई दोस्तों। इनका पीछा कब छूटेगा बेचारे अंधभक्तों का। ट्रंप से पीछा छुड़वाने की सोची जो और ममतानी साहब आगे। पन्नू साहब बीच में बैठा ही है। पन्नू एक वीडियो बनाता है, बवाल मच जाता है कहीं पर भी। $1 लाख का इनाम है। चाहिए क्या अंधभक्तों? $1 लाख, 10,000 का इनाम इनाम रख रहे अगला। और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है, आपको बताएंगे। पन्नू साहब तो है ही है। ममतानी साहब ने हिंदी में इंटरव्यू दे दिया। बड़े कमाल की बात है कि इनकी माताजी तो पंजाब की हैं, इंडियन पंजाब की। पिताजी गुजराती हैं, पाकिस्तान के गुजरात के। तुम कौन सा भारतीय बता रहे थे भाई इसको? पहले तो ये बताओ, किस एंगल से तुम इसको भारतीय बता रहे थे? ये बेचारा पैदा होया कभी से रहा वहां पे, न्यूयॉर्क के अंदर है, तो न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया। उसने खुद हिंदी में इंटरव्यू दे के बताया है। हिंदी में इंटरव्यू दिया उसने। सुने आप लोगों ने हिंदी का इंटरव्यू उसका, जोर ममदानी साहब का। पहले तो मैं युगांडा में पैदा हुआ, ईस्ट अफ्रीका में, and my mother's family is from Punjab in India. My father's family are Gujarati Muslims who left Gujarat about 200 years ago to East Africa. When I was 7 years old, हम New York City आए, and I grew up in Morningside Heights. तो जैसे आप बोलते थे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि because I'm Muslim मैं जीत नहीं सकता, and this is what many face when they are the first. जब मैं असेंबली के लिए रन करता था in 2020, there were uncles who came up to me and said, well meaning, लोगों को बताना मत कि आप मुसलमान हो, because people are afraid. People have lived through the years after 9/11. हाँ, किस एंगल से इसको भारतीय बोल रहे थे? हैं? किस एंगल से? हाँ, पंजाब का जरूर बोल सकते हैं इसको भाई, इनकी माताजी पंजाब की हैं, वो तो बोल सकते हैं। अभी आप ना थोड़ा ध्यान से सुन लेना, और पन्नू साहब का वीडियो पूरा जरूर सुनना, इतना कहेंगे पूरा जरूर सुनना। पता नहीं कहां कहां तकलीफ होगी आप लोगों को, इतनी तकलीफ होगी कि हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो अगली बात बताई जाएगी वो, उसमें तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। पहले तो ना आप पन्नू साहब के वीडियो को ही सुन लो, दिक्कत मत लेना ज्यादा, है ठीक है। We all remember that in June 2023, Shahid Hardeep Singh Nijjar, the Khalistan referendum organizer in Canada, was assassinated by Indian agents. Prime Minister Trudeau openly stated in the parliament that Indian agents are being investigated for assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar. But the evidence was not disclosed publicly. With most recent reporting by Bloomberg, it has been uncovered that UK intelligence officials provided communication that was intercepted, that was provided to Prime Minister Trudeau and RCMP chief in July 2023. And it named that the Indian government officials was behind the targeted assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar. Now, during G7 foreign ministers meeting, the face of India's violent Hindutva transnational repression, Jaishankar will be coming in the Niagara region on 11th and 12th of November. I ask all Canadians to support Pro-Khalistan 6, and if anybody has any information where Jaishankar will be staying, what time he will be landing, we want to know, and we want to follow the black letter law of Charter of Rights and Freedom, and we will question Jaishankar in Niagara region. There is a difference between Sikhs for Justice and Modi's India regime. You can look at it. Indian government officials paid $100,000 to kill me in New York. That was foiled by the American agencies. Six for Justice is offering $10,000 to anyone in Canada who would give us information about the hotel location of Dr. Jaishankar or his flight details. Because what we are doing, following the Charter of Rights and Freedom, we are going to do a Khalistan picketing 24/7 from 11th November to 12th November to internationalize that Modi's India is behind transnational assassinations, and they have not stopped. Most recently, our Khalistan referendum organizer Inderjeet Singh Gosal
has been offered a witness protection in September of 2025. So this means the kill assassination plots against Pro-Khalistan 6 are still continuing. We have a message for Modi. You might be ready to reset ties with Canada. Pro-Khalistan 6 will hold you accountable under the laws. And Jaishankar, you are going to have sleepless nights from the time you land in Canada and before you take the flight. I ask Canadians to support Pro-Khalistan 6 and make sure that we challenge those who challenge Canada's sovereignty. $10,000 reward to anyone who will give us information about the flight details of Dr. Jaishankar and the hotel details. देख लो भाई, किसी को $10,000 का इनाम चाहिए तो अपना तो ना कोई वीजा ना कोई पासपोर्ट है। बाकी तुम्हारे तकलीफ तो होती है। अभी ताजा ताजा एक भैया का तकलीफ हो रही थी। अगर भैया तेरा नंबर मैंने जारी कर दिया ना, तो पाताल लोक में भी नहीं छुप पाएगा। जो तू बकवास कर रहा था ना व्हाट्सएप के ऊपर, तू इन बकवासों में खुद ही फंस जाएगा, खुद ही फंस जाएगा। जिस तू भाषा का प्रयोग कर रहा था, तेरा ऐसा जहाज बनवाएंगे, तेरा कोई जिक्र नहीं करेंगे। इसका नंबर जिसको चाहिए ना, इस भैया बिहारी का नंबर ले लेना। पहली बात है, कोई भैया बिहारी नहीं है, कोई खाकी कच्ची आड़ा है, खाकी कच्ची आड़ा। उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी अपील आप लोगों से करनी है, वो अपील है उस लड़के के लिए जिसका नाम पंजाब विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अशमीत सिंह मान को पंजाब की कोई भी राजनीतिक पार्टी समर्थन नहीं कर रही है। यह भाई पंजाबीवाद की लड़ाई अकेले दूसरे भाइयों के सहयोग से लड़ रहा है। आरएसएस विश्वविद्यालय पर अपना मान डालना चाहती है, लेकिन ये जो भाई दीवार बन चुका है, जो इनके सामने खड़ा है, ये अभी तक पहला उपराष्ट्रपति जो सामने खड़ा है। वाहेगुरु इस नौजवान को चढ़ती कला में रखे। पहले बात तो इस नौजवान की मदद करो भाई। आज टिंडर भाई का भी फोन आया था, बोला चलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में, चलेंगे। आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं भाई। और जो ये खाकी कच्ची वाले है ना, उन्हें टाइम से देने भाई की जगह पकड़ जाना, कहीं फिर बाद में को हमारे को बताया नहीं था। जितने भी सिख संगतें हैं, ज्यादा से ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे। वो आपकी है ना, आपका जो बोलते हैं आपका मूल वो है। आपको पहले ही बता दिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास पहले ही बता दिया था, कब कब बनी और कहां कहां बनी है। तो इसलिए अपील है सभी से ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उन बच्चों का समर्थन करें। नेता ने बढ़ने के लिए नहीं जाना वहां पे, उन बच्चों का समर्थन करना है भाई। जो बच्चे वहां पर लगे हुए हैं, अपने हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अशमीत सिंह मान है जो, इस बच्चे को सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। अकेला लड़ाई लड़ रहा है भाई हक सच की। नेता बनने के मौके आपके पास बहुत आएंगे, बहुत आएंगे आपके पास नेता बनने के मौके, लेकिन पहले अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं बचा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ये याद रख लेना। ये लोग तो चाहते हैं कि आप लोगों का सब कुछ खत्म हो जाए। आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपकी बोली, हर चीज को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहे हैं। ये अपना खुद का इतिहास लिखते जा रहे हैं, जो कि इनका इतिहास कुछ नहीं, बस माफी मांगने से अलग इनका कोई इतिहास नहीं रहा है। और किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो फिर कर लो भाई, पन्नू साहब जो वीडियो जारी कर रहा है रोक लो ना। वो क्या नहीं जा रहा हो तुम्हारे से, वो फिर वीडियो जारी कर देता है। थोड़े बहुत बचते हो, ममदानी साहब बचते हैं। और 7 से 8 जहाजों पर पहुंच गया डोंटू साहब, बोला 8 जहाज पड़े थे। कर लो गिनती, करो क्या करोगे, तुम्हारा समझ में नहीं आ रही। डोंटू साहब तुम्हारे को रगड़ेगा हर साइड से, याद रखना इस चीज को। और बिहार वालों को तो मजा मिल रहा है, क्यों बिहारियों लिया मजा, वापिस लग जाना अपनी दराती लेकर टाइम से। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।